Hello students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. Our today's topic is diffraction of light. Diffraction of light is the phenomena of bending of light around the sharp corners of narrow slit or obstacle into the region of geometrical shadow. As you know, the light always travels in straight path and it casts shadows of the objects appearing in its path. So, when the wavelength of light is comparable with the size of the slit or the obstacle, then it gets diffracted, it bends. For example, see here, and this is the narrow slit AB. Here the light incident from the source S. Now this light travel around the straight path along SAA prime, SB, BB prime. So it casts its shadow along A prime X and B prime Y. But when the size of this slit is very small, then the light bends around the corner in the region A prime X. Similarly, when the light is incident on the obstacle having sharp corners and its size is comparable with the wavelength of light, then this light bends in the region of geometrical shadow, that is A prime B prime, and this phenomena, that is the bending of light around the sharp corners into the region of geometrical shadow, is known as diffraction of light. इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल विद द साइज ऑफ स्लिट और ऑब्स्टेकल। ये जो डायफ्रैक्शन का इफेक्ट है it can occur in generally, but it is apparent in daily life for the radio waves and for the sound waves, because the wavelength of radio waves and sound waves is large, and the size of the particles appearing in the atmosphere in our environment around us is very large. Now the types of diffraction. There are two types of diffraction. First one is Fresnel, and the second one is Fraunhofer diffraction. Fresnel diffraction. Fresnel is the name of scientist who gave it. And in this type of diffraction, the source and the screen are at finite distance from the slit or the obstacle. यहाँ पर जो हमारे पास सोर्स और स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और जो वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है लाइट का, जब ये फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होंगे तो इस सोर्स से जो लाइट जाएगी वो जाएगी या तो स्फेरिकल वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा या फिर सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट लाइट का इंसिडेंट होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द सोर्स. बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, द सोर्स and the screen are at infinite distance from the slit or the obstacle. अब आपको मालूम है कि in the laboratory if you want to do the practical, and then source and screen they are at infinite distance, it is not possible, और it can be done. हम इसे करेंगे, कैसे करेंगे? और ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास सोर्स होता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लो ये सोर्स हमारे पास स्लिट से कहां पे चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए. इट मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब होगा तो यहां से जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी सोर्स से, और सोर्स से जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो एक वेव फ्रंट कैसा होगा, वो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा. अब ये सोर्स हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास लाइट का आए, ये हम कैसे करते हैं, हम इस केस में इस सोर्स को इस ढंग से प्लेस करते हैं कि ये जो सोर्स है इट इज एट द फोकल प्लेन ऑफ द लेंस. हम बाय प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस, हम इस सोर्स और स्लिट के बीच में, जैसे ये हमने ये सोर्स है, यहां पर हम क्या करते हैं, एक स्लिट एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं, जैसे सपोज ये लेंस हमने रख दिया, तो यहां से ये जो सोर्स है इट मस्ट बी एट इट्स फोकल लेंथ. इस लेंस के क्या होगा, फोकल लेंथ. आपको पता है जब फोकल लेंथ के ऊपर होगा तो यहां से जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे, और ये लाइट फिर कैसे बन जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाएगी. ये ऐसे ना रहकर ऐसे बीम आएगी पैरेलल, तो ये जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा,
प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा। तो ये हमारे पास अब सोर्स कैसा हो गया, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। और जो स्क्रीन भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चाहिए, तो हम स्क्रीन को इस तरह से रखेंगे कि बाय प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस, यहां भी एक क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस प्लेस करेंगे। अनदर लेंस, जैसे मान लो सपोज L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, दिस इज अनदर कन्वेक्स लेंस। ये इस तरह से होगा कि ये जो डिस्टेंस है इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, ये भी हो, जिससे क्या हो कि जो लाइट है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी आफ्टर डाइफ्रैक्शन, दैट गेट फोकस्ड एट द दैट गेट फोकस्ड एट द स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, फोकस हो जाए, सिंगल पॉइंट के ऊपर मिले और हमें क्या हो, पैटर्न अपीयर हो। यहां पर जो आपके सिलेबस में है, दैट इज द Fraunhofer diffraction at a single slit. In Fraunhofer diffraction, consider a monochromatic source of light S, and this source of light is placed at the focal plane of convex lens L1. Now, the light incident from this source after refraction appear as a parallel beam of light having plane wavefront AB. This is the plane wavefront. ये हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक नैरो स्लिट ए बी, हमारे पास नैरो स्लिट है जिसका जो सेंटर है दैट इज सी। हियर इज a screen on which we study the pattern after the diffraction of light. This is narrow slit. AB is the narrow slit and C is the center, and this is the plane wavefront. अब यहां पर ये लाइट जो है डाइफ्रैक्ट होगी अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। ये हमने एक कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, लेट अस नेम दिस लेंस एज L2। अब होना क्या चाहिए कि ये जो लाइट है ये ए बी से, यहां इस स्लिट की क्या होनी चाहिए, यहां पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये जो लाइट है ये ऐसे एक ब्राइट इमेज बननी चाहिए स्लिट ए बी की। कहां पर, यहां पर बननी चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सेंटर ओ ऑफ स्क्रीन है, तो इस सेंटर ओ के अराउंड हमें क्या बननी चाहिए, एक ब्राइट इमेज बननी चाहिए स्लिट एबी की। बट ड्यू टू डाइफ्रैक्शन यहां पर अराउंड द कॉर्नर, यहां से ये जो लाइट आ रही है ए से, ये लाइट क्या होती है, डाइफ्रैक्ट हो गई। सपोज इट इज डाइफ्रैक्टेड थ्रू एंगल थीटा, ऐसे ये डाइफ्रैक्ट हो गई है एंगल थीटा से। Suppose it meets at point P on the screen after diffraction, and जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्लिट AB की यहां पर अराउंड द पॉइंट O एक इमेज बननी चाहिए थी, ब्राइट इमेज। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक सेंटर O पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और it is flanked by a number of secondary maxima और minima। यानी हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं अराउंड द सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और ये जो हमारे पास पैटर्न बना दैट इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाई? ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट। और ये जो पैटर्न है
जैसे आपने इंटरफेरेंस स्टडी किया था, तो इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। यानी वहां पर जो सुपरपोजिशन हुई थी लाइट की, वो टू कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही, टू वेव फ्रंट सुपरइम्पोज कर रहे थे, टू कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही थी। और उसमें क्या हो रहा था, आपके पास अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे थे अराउंड द सेंटर ऑफ स्क्रीन। लेकिन यहां पर जो हमारे पास डायफ्रैक्शन पैटर्न है, इसमें जो सुपरपोजिशन या इंटरेक्शन ऑफ लाइट हो रही है, दैट इज ऑफ द लाइट ऑफ द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। वहां पर अलग अलग वेव फ्रंट सुपरइम्पोज हो रहे थे और लाइट टू सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। यहां पर जो लाइट है वो सेम वेव फ्रंट की, वन वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स की लाइट सुपरइम्पोज करती है। और वहां जो इंटरफेरेंस में आपने देखा था कि ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, ठीक है। लेकिन डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो है, जो फ्रिंजेस हैं वो आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो ट्वाइस एज वाइड एज दैट। यहां पे जो सेंटर पे फ्रिंज बनेगी, जैसे अगर हम इसे मैं यहां पे बनाऊं तो मेरे पास जो ये सेंटर पे फ्रिंज बनेगी वो हमारे पास ऐसे बनेगी। ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी, ब्राइट फ्रिंज। एंड इट इज इसके अराउंड आपके पास क्या होंगी, इसके अराउंड आपके पास डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी। यहां पर फिर आपके पास डार्क फ्रिंज बनेगी और फिर ब्राइट बनेगी। ये है डार्क और ये है ब्राइट। इसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये जो डार्क फ्रिंज बनी है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा की, सॉरी सेकेंडरी मिनिमा की है, ये फिर ब्राइट सेकेंडरी मैक्सिमा की है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहां पर फिर हमारे पास डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, यहां पर फिर डार्क बनेगी, ये डार्क है, ब्राइट है, यहां डार्क है और ये फिर ब्राइट है। तो जब आप इसे पैटर्न को उसके कंपेयर करें तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इट इज ट्वाइस एज वाइड। इसकी जो विड्थ है इसकी ट्वाइस है। जैसे ये इसकी विड्थ है डार्क फ्रिंज की, तो इसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो इसके क्या है, डबल है। और ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज जो बनी है, दे आर सेकेंडरी, मैक्सिमा और मिनिमा है, ये सेम विड्थ की होंगी। What the intensity of the fringes goes on decreasing। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, जैसे इधर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये फ्रिंज जो आप देखोगे इसमें ये ज्यादा इंटेंस है, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, ज्यादा इंटेंसिटी की होगी। तो फर्स्ट ब्राइट उससे कम, उसके सेकंड ब्राइट उससे कम, ये इंटेंसिटी क्या है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न में जो है ऑल द फ्रिंजेस जो हैं वो सेम इंटेंसिटी की होती है। और जो अगर टू वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की सुपरइम्पोज करती थी तो हमारे पास जो डार्क फ्रिंज थी दैट भी परफेक्टली डार्क होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न में है वो जो फ्रिंज बनती है दैट इज नॉट परफेक्टली डार्क। जो डार्क फ्रिंज होगी दैट इज नॉट परफेक्टली डार्क, और जो ब्राइट फ्रिंजेज होगी वो भी जैसे जैसे आप बियॉन्ड द सेंटर जाएंगे तो वो फ्रिंजेस जो हैं वो आपके पास कैसी होती जाएंगी, फेंट हो जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। नाउ वी स्टडी हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ। और सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा क्यों बना, तो सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करें तो आपने हाइजन प्रिंसिपल पढ़ा था जब हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी, कि हाइजन प्रिंसिपल ने बताया था हमें कि ईच पॉइंट ऑन द गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज ए source of secondary wavelets sending out disturbances in all direction, and the envelope of secondary wavelets gives the position of secondary wavefront। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये वेव फ्रंट आ रहा है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो वेव फ्रंट है ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है AB। ये प्लेन वेव फ्रंट स्लिट AB है। ये जो वेव फ्रंट मैंने बनाया हुआ है ये क्या है, प्लेन। इसकी मैं मान लो इसका साइज मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो स्लिट है इसका साइज क्या है, A है, और स्लिट और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। तो यहां पर जो लाइट जाएगी जैसे O पे, पहला क्वेश्चन ये है कि O पे सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बना,
आपको पता है कि जब लाइट जा रही है ए से और बी से, कौन सी लाइट है, एक ही वेवफ्रंट ए भी आ रहा है कि एक ही वेवफ्रंट की लाइट यहां पर ए पार्ट से, उसका एक पार्ट ए है, वहां से वो प्राइमरी वेवलेट जो है, प्राइमरी वेवफ्रंट से क्या निकला हमने, गिवन वेवफ्रंट कौन होता है, प्राइमरी, और उससे जो निकलेगा वो सेकेंडरी वेवलेट होगा। तो यहां से क्या जा रहा है, सेकेंडरी वेवफ्रंट जा रहा है, सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी वेवफ्रंट को लेके जा रहा है, और बी से वो जा रहा है। वो जब यहां से जा रहे हैं तो ओ पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो ए से जब डॉटेड लाइन बनाई है ओ तक और बी से, इसमें ऑप्टिकल पाथ क्या इक्वल और फेज डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो जब ये लाइट्स ए और बी से ओ पे पहुंच गए, दे हैव इक्वल ऑप्टिकल पाथ, दे ट्रैवल इक्वल ऑप्टिकल पाथ, पाथ डिफरेंस क्या है, जीरो है, और इट मींस दे इंटरेक्ट और सुपरइम्पोज, और सुपरइम्पोजिशन से वो क्या देंगे यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देंगे। तो सेंटर भी हमारे पास क्या बनेगी, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। लेकिन जब हम पी पॉइंट को आप कंसीडर करें, तो पी पॉइंट पे जब हमारे पास ए से लाइट जा रही है पी पर और बी से जा रही है पी पर, तो ए से पी तक आप देखोगे ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो कि मैंने थिक लाइन से बताया है, और बी से पी तक ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ये अगर आप इसको देखना चाहिए कि कितना पाथ डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, ए से बी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लो मैंने इसे सपोज कर लिया एन, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, पाथ डिफरेंस हुआ बी एन। ठीक है, तो मैंने, अगर आप यहां स्टडी करना है कि पी पे सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा या सेकेंडरी मिनिमा बनेगा, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस की फॉर्म में मुझे कंडीशन निकालनी है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था इंटरफेरेंस में कि जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा होती थी उसमें पाथ डिफरेंस क्या होता था, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था, एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था, 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो एन लैम्डा किसके लिए होता था, फॉर मैक्सिमा, फॉर मिनिमा। लेकिन यहां पर क्या होगा वो हम अभी बात करेंगे। नाउ वी फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। Here this is the point P, we study maxima is found or minima and what is the condition for that। यहाँ पे जो P पे वेवलेट्स जा रहे हैं A से और B से, इनमें पाथ डिफरेंस कितना आया था, Bn। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स रीचिंग एट पॉइंट P इज इक्वल टू Bn। आपने ये पाथ डिफरेंस निकालना है, तो ये एंगल अगर ये थीटा बन रहा है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी क्या आएगा, दिस एंगल इज थीटा। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, ये एंगल थीटा है तो सामने वाला Bn क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल A and B, A and B साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर हमारे पास एंगल के साइड, सामने वाले साइड कौन से, Bn, परपेंडिकुलर Bn हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया AB इज इक्वल टू Bn अपॉन AB। क्या है, AB इज द साइज ऑफ स्लिट दैट इज A, इंप्लाइज Bn इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या बन गया, इट मींस जो पाथ डिफरेंस बना दैट इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू Bn बराबर है A साइन थीटा। यूनिट नंबर 1 एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ईदर मैक्सिमा और मिनिमा। हम देखेंगे कि ये मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा। मान लो हम मान लेते हैं कि सपोज द पाथ डिफरेंस, आपको पता है कि x इज इक्वल टू n लैम्डा हो सकता है, x इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो सकता है। हम पहले ले चलते हैं n लैम्डा, n लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सेकेंड टाइम हम क्या लेंगे, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब जैसे वेवलेंथ के बराबर है या हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। अब जब हम मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा के बराबर है, जब आपने n1 रखा तो पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। यहां से वेव जा रही है A और B से, उसके बीच में A से जो पार्ट जा रहा है और B से जा रहा है उसमें पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। अब इसके लिए हम मान लेंगे कि सपोज द स्लिट इज एज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपको मालूम है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस हम ले लेते हैं पहले
एन लैम्डा है। और सपोज कर लेते हैं फॉर फर्स्ट फ्रिंज एन इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 1। सो बी एन क्या हो गया हमारे पास, पावर डिफरेंस क्या हुआ, एन मान रखा तो पावर डिफरेंस कितना बन गया, लैम्डा, इंप्लाइज ए साइन थीटा। ये जो नंबर 1 है और नंबर 2, जैसे हम 1 और 2 से ले लें तो ए साइन थीटा 1 बन गया, क्यों, क्योंकि हमने जब 1 लिया तो थीटा 1 बन गया, इज इक्वल टू क्या हो, लैम्डा, इज इंप्लाइज साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। आपके माइंड में होगा कि सर ने एकदम से फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इसको कैसे अनाउंस कर दिया, कैसे बोल दिया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। देखिए हमारे पास जो यहां से वेव जा रही थी ए और बी से, इसमें पावर डिफरेंस क्या था, हमने फर्स्ट फ्रिंज के लिए लिया था 1, तो पावर डिफरेंस कितना होना था, लैम्डा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पावर डिफरेंस लैम्डा है तो वेव ऐसे होगी, ये लैम्डा है। अब यहां से फर्स्ट हाफ एसी और सेकंड हाफ क्या, बीसी। हमने स्लिट को अज्यूम कर लिया कि फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा जो भी बनेगा उसके लिए स्लिट को हमने अज्यूम कर लिया कि डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। जब हम स्लिट को 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में, तो पावर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो पावर डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 2। और जो वेव जा रही है वो लैम्डा बाई 2 फर्स्ट हाफ में, लैम्डा बाई 2 सेकंड हाफ में, दोनों पार्ट डिफरेंस है, बट इट इज इक्वल एंड अपोजिट इन फेज, ये अपोजिट फेज में है। तो जब ये सुप्रीम पोज करेंगे दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। यहां से जो फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ से जाएगी पी पे, जब ये मीट करेगी दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड लीड्स टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो ये पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसलिए ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, हम पहले बोले थे कि ये क्या होगा हमें पता नहीं, मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन हमें क्लियर हो गया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। सिमिलरली हम जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो bn इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 लैम्डा बन जाएगा, और हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, थीटा 2 बन जाएगा। इट इंप्लाइज कि साइन थीटा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे a साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, implies sin theta 2 is equal to 2 lambda upon a. So it is the position of second secondary minimum. How? यहां पर हमारे पास पावर डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा। हम यहां पर क्या करेंगे, स्लिट को एज्यूम कर लेंगे कि ये जो स्लिट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स जैसे हमने अभी बनाया था कि ये हमारे पास ये स्लिट इतनी है, इसे हम क्या करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 पार्ट्स जो हैं दे हैव सेम फेज, लेकिन उसका जो अल्टर दूसरा आएगा अपोजिट फेज होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या देगा, ये मिनिमा देगा। तो इट implies that there is the formation of second secondary minima. This is the position of second secondary minima. इसी तरह से हमारे पास पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा, जनरली हमने सीधा लिख देंगे सेकेंडरी मिनिमा क्या आएगी, साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन a। दिस इज नंबर 5। अब डायग्राम हमने रब कर दिए, लेकिन वहां पर आप देखोगे तो आपने डायग्राम बनाई हुई है, आप वीडियो में दोबारा पीछे बैक करके आप उस डायग्राम को व्यू कर सकते हैं। उस डायग्राम में हमने ये ऐसे बनाया था, सेंटर O बनाया था और ये P पॉइंट बनाया था, और P और O के बीच में डिस्टेंस को क्या माना था, बाई माना हुआ था। और यहां से जो स्लिट आई थी, स्लिट से हमारे पास AB स्लिट थी, उसका जो सेंटर था ये हमारे पास C था, और यहाँ से जो लाइट है वो हमारे पास बेंड हुई थी। यहाँ हमने कन्वेक्स लेंस रखा हुआ था, यहाँ से C से सीधी गई थी P पर, और ये हमारे पास ऐसे गई थी, यहाँ से ऐसे बेंड हुई थी, यहाँ से ऐसे गई थी, ऐसे बेंड हुई थी,
ऐसे अगेन मैं इस डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे मिली थी, ये ऐसे गई थी, ये ऐसे मिली थी। ऐसे एंगल थीटा था, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ गई है, मैंने ये निकालना है थीटा, टेन थीटा निकालूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इसको मैंने एक्सप्लेन करना है। आई वांट टू फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये मेरे पास y है। अगर मैं इसे इस थीटा को ये ले लूं, राइट एंगल ट्रायंगल सीओपी, जैसे फ्रॉम, बिल्कुल वही डायग्राम में रिपीट की है, राइट एंगल ट्रायंगल सीओपी। सीओपी को आप देखोगे तो आपके पास क्या बना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, ओपी अपॉन सीओ। व्हाट इज ओपी? अगर आप ओपी को व्यू करेंगे तो ओपी क्या है, y अपॉन सीओ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, दैट इज d। अब हम ये जो बात कर रहे हैं जनरली n फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर n लिख दूंगा कि ये डिस्टेंस y की जगह क्या है, y8 है, तो yn अपॉन d। अब ये इक्वेशन बन जाएगी 6, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी है इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की। अब हमारे पास एज ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है, इट इज एट वेरी स्मॉल एंगल, एज थीटा एन इज वेरी स्मॉल, ये थीटा एन जो वो बहुत छोटा है, इंप्लाइज साइन थीटा एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा एन। ये दोनों बराबर इसके हैं, विड्थ के, हम सपोज कर लेते हैं ये बराबर आ गए हमारे पास पोजीशन साइन थीटा एन टेन थीटा एन। तो यहां से हमारे पास बन गया वाई एन अपॉन डी 6 इक्वेशन से, और 5 से मेरे पास आ गया एन लैम्डा अपॉन ए, इंप्लाइज वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन ए। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth, position of nth secondary minima from center O of screen, from center O of screen, center O से ये डिस्टेंस है, पोजीशन या डिस्टेंस। अब आप विड्थ निकालना चाहते हैं, आपको पता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव, और जो मैक्सिमा के बीच की जो विड्थ होगी वो मिनिमा होगी, यानी ये हमारे पास किसकी है, nth सेकेंडरी मिनिमा है। अगर मैं कंसेक्टिव सेकेंडरी मिनिमा के बीच की विड्थ निकालूं तो वो किसकी आएगी, मैक्सिमा की आएगी। विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और डार्क फ्रिंज बीटा इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वाई एन मेरे पास है एन लैम्डा डी अपॉन ए माइनस एन माइनस वन लैम्डा डी अपॉन ए, लैम्डा डी अपॉन ए कॉमन आ गया, एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस वन इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लैम्डा डी अपॉन ए, दिस इज नंबर 8। फ्रॉम इक्वेशन 8 we observe the fringe width is independent of n, it doesn't depend upon the n, it means all the secondary maxima are of same width. Similarly we can find the position of secondary maxima, or here as you know in the case of interference जो पार्ट डिफरेंस होता था bn, वो क्या आता था 2n plus 1 lambda by 2, एक आता था n lambda और एक आता था 2n plus 1 lambda by 2। तो यहां पर जब आप n 1 रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 3 by 2 lambda बनेगा। अब जब आप n 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 5 by 2 lambda बनेगा। तो इसलिए फॉर n is equal to 1, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे आपने किया था, जब आप n1 रखेंगे तो आपके पास जो पार्ट डिफरेंस वैसे आता था वो क्या आया था नंबर 1 से, bn is equal to a sin थीटा।
तो यहां पर जब आप n1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन थीटा 1, लेकिन पहले आपने सिंपल थीटा लिया था, यहाँ पे प्राइम ले लेंगे और हमारे पास ये पार्ट डिफरेंस है, इसलिए ये बन गया a साइन थीटा 1 प्राइम इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो साइन थीटा 1 प्राइम क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। सो दिस इज द पोजीशन, लेकिन ये किसकी होगी मिनिमा और मैक्सिमा। बिल्कुल वैसे ही अब हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब जब आप n1 रखेंगे तो हमारे पास n1 रखने से ये क्या बन गया आपके पास 2 into 1 और ये बन गया 3/2 लैम्डा। तो यहां पर आपके पास जब हम इसे एवेल्युएट करेंगे तो हम सीधा लिख देते 3/2 लैम्डा बाई ए। और यहां पर जब आपके पास 3/2 लैम्डा आया, ये n1 रखने से ये हमारे पास 3/2 लैम्डा आया, तो 3/2 लैम्डा में आपके पास वेव कैसी होगी लैम्डा के लिए तो ये है, बस लैम्डा में लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे तो 3/2 लैम्डा बनेगा। लैम्डा बाई 2 मतलब इतना और आधी वेव और ऐड करनी पड़ेगी। अब ये जब ये वेव जाएगी, इसका एक हाफ पार्ट यहां से जा रहा है, हाफ हम यहां पर क्या करेंगे स्लेट को एज्यूम कर लेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसका लैम्डा बाई 2 है, सेकेंड पार्ट का लैम्डा बाई 2, थर्ड पार्ट का लैम्डा बाई 2। अब जो दो पार्ट हैं दे हैव इक्वल एंड ऑपोजिट फेज, वो कैंसल आउट करें, लेकिन जो थर्ड पार्ट है दैट रिमेन एज सच एंड प्रोड्यूसेस द मैक्सिमा। तो ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी किसकी, दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, अगर हम सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही साइन थीटा 2 प्राइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, और जब आप 2 रखेंगे 2 into 2 plus 1 4 plus 1 5/2 लैम्डा बाई ए। और nth के लिए बात करेंगे तो nth मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा साइन थीटा n प्राइम 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। अब वैसे ही आप करेंगे जैसे यहां पर आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो यहां पर tan थीटा n की tan थीटा n प्राइम ये बाई प्राइम है, और इस तरह से बाई प्राइम n क्या बाई d क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a, और बाई प्राइम n 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a इंटू ऊपर जो है वो आपके पास आ जाएगा कैपिटल D। तो सिमिलरली आप इस एक्सप्रेशन को एकदम से आप कर सकते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम इन दिस लेक्चर मैं इसे एकदम से उसी इसमें इवेल्युएट कर रहा हूं। हमारे पास ये आगे पोजीशन बाई प्राइम n, जैसे बाई n निकाला था 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2a। अब आपने विड्थ निकालनी है, तो विड्थ जो है वो अब हमारे पास ये किसकी पोजीशन है, ये पोजीशन है nth सेकेंडरी मैक्सिमा की है। अब आपके पास विड्थ किसकी आएगी, मैक्सिमा के बीच में किसकी विड्थ होगी सेकेंडरी मिनिमा की होगी, तो यहां पर मिनिमा लिखा जाएगा जो मैक्सिमा लिखा था। बीटा की जगह क्या बन गया बीटा प्राइम, क्योंकि पहले बीटा था अब बीटा प्राइम, किसमें बाई प्राइम n माइनस बाई प्राइम n माइनस 1। तो जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब आप पुट करके आप देखेंगे इनको इवैल्यूएट करेंगे, तो आपको इवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज अगेन लैम्डा d बाई ए, जो आपके पास पहले आया था। फ्रिंज विड्थ आई थी आपके पास लैम्डा d बाई ए। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो विड्थ है फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा इट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इट मीन्स ऑल द सेकेंडरी मिनिमा आर ऑफ सेम विड्थ। और सेकेंड चीज क्या है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है, जो पीछे आपने विड्थ ऑफ सेकेंडरी वो भी क्या आई थी बीटा भी लैम्डा d बाई ए ही आया। तो ये बीटा और बीटा प्राइम ये आप दोनों को अगर आप देखेंगे दे आर ऑफ द सेम वैल्यू। अब इट मीन्स कि जो ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फॉर्म्ड अराउंड द सेंटर ऑफ द स्क्रीन आर ऑफ सेम विड्थ, उनकी विड्थ क्या होती है सेम होती है।
अब हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, जिसके बारे में पहले ही बता चुका था कि जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है दैट इज ट्वाइस एज द वाइड ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा। इट मींस कि इसके ट्वाइस आती है। लेट अस नेम द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा एज इक्वेशन नंबर 8, और ये आपने पहले निकाली थी, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए। हम इसे दे देते हैं, पहले हमने नंबरिंग की हुई है, मान लो इसे मैंने नंबर ए दे दिया। अब मैंने निकालनी है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो बनी थी वो आपको मालूम है कि फर्स्ट डार्क की, ये जो फर्स्ट डार्क आपकी स्टार्ट हो रही है, अब ये दोनों साइड, यहां भी ऊपर भी इतनी डिस्टेंस पे और इतनी यहां भी फर्स्ट डार्क स्टार्ट हो रही है, ऐसे होता है आपके पास पैटर्न बनता है। तो ये फर्स्ट डार्क, और फर्स्ट डार्क की पोजीशन कौन सी थी आपको मालूम है, जब आपने बिगिनिंग में किया था ये आपने निकाला था बाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी ओवर ए। तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या हुई, फॉर फर्स्ट, ये एनथ डार्क की पोजीशन, एनथ डार्क पोजीशन। अब फॉर फर्स्ट डार्क एन क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये बन गया बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। इट मींस ये जो हमारे पास पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, बाई 1 प्राइम, बाई 1 है सॉरी, यहां पर बाई 1 क्या है, लैम्डा डी ओवर ए। इस तरह से ये जो फ्रिंज है सेंटर ब्राइट फ्रिंज, इट एक्सटेंड्स अलोंग बोथ साइड्स, अप और डाउन, नीचे भी और ऊपर भी, बोथ साइड में एक्सटेंड हो रही है अप टू डिस्टेंस बाई 1। सो width of central bright fringe 2/1, 2 into lambda d over a। अब मैं इक्वेशन 8 ले लूं या इक्वेशन ए ले लूं, जिसे मैंने पहले भी नंबरिंग की हुई थी, रब कर दिया। अब आपने अपने आर्टिकल में वही नंबर चला सकते हैं आप। तो ये हमारे पास आप देखोगे ये तो सेम है, और ये 2 ट्वाइस है, 2 ऑफ बीटा या 2 ऑफ बीटा प्राइम। इट मींस ये जो बीटा नॉट है दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इट इज ट्वाइस एज वाइड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं कि डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रेडली ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ फॉर रेडियो वेव्स एंड साउंड वेव्स। व्हाई? मैंने पहले लेक्चर में आपको क्लियर करवाया, क्यों? क्योंकि इन वेव्स की वेवलेंथ जो होती है वो लार्ज होती है, और जो पार्टिकल्स हैं अराउंड अस दे आर ऑफ लार्ज साइज, और डाइफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स या साइज ऑफ द स्लिट और ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और यहाँ पर डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपके पास एक डिफरेंसेस आपको अवेयर होने चाहिए। मैंने ये भी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन। ये फ्रिंजेस ट्वाइस होती है, जो पैटर्न है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट गोज ऑन डिक्रीजिंग होती है। इस तरह से इस लेक्चर को अगेन रीड कीजिए, अपनी बुक में इसको कंपैरिजन कीजिए और स्टडी कीजिए। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।